Hi dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for ninth standard students. Subject is mathematics. Today's topic is set, S-E-T, set. The word set is very common to all of us. We use the word set. Sometimes we say about key set, sometimes we say about dinner set also. But here the concept of set is related with mathematics where we group the data and say it is a set of so and so thing. Wherefrom there are big concepts related to set and set theories. Set is anyway a fundamental concept in mathematics which began in the late 19th century, and it is such a topic or such a theory that which can explain many aspects of mathematics, especially in the field of statistics. And there are graphical representation, diagrammatic representation, and all such things in set. You will be learning about set now and will be learning further about it in higher classes. Dear students, we will be learning about sets now. Set is a common term used in our day-to-day life, and this chapter is about sets in mathematics, where you will be studying about types of sets, Venn diagrams, and different categories of sets. Whenever we say about sets, we remember about something which is commonly used in our day-to-day life, key sets. Sometimes the set of tools used in our geometry class especially. And we also very clearly remember about dinner sets whenever we think about sets. Now, if you read these examples, for example, days of a week, yeah, months in a year, otherwise thinking about brave children in the class, first 10 counting numbers, strong forts of Maharashtra, planets in our solar system. What actually comes in our mind is a set of examples or answers for that, and certain answers are fixed. For example, if it is about days in a week, or will be having answer Sunday, Monday, like that, right? If it is about solar system, we'll be having Mercury, Mars, even Earth, like that it goes. All 8 planets we will list, all 7 days in a week. So set is a group or which comes under that particular category, we call it as set. When we go further, we can define set as, if we think about how to make set more perfect in our definition, if you can definitely and clearly clearly decides the object of a given collection, then that collection is called a set. अगर हमको डेफिनेटली क्लियरली बता सकते हैं ये वो सेट में आता है, उसमें आ गया हमारे लिए एग्जाम्पल डेज इन ए वीक, कुछ डाउट नहीं था. डेज इन ए वीक बोले तो इट वाज वेरी क्लियर, दैट व्हाट इज वेरी क्लियर, डेफिनेट है, क्लियर है. So it became a set. Understood? So if A is an element of set A, जैसे कि Wednesday is an element of days in a week, then week will write in such a way that A is an element of A. A क्या है इधर? अभी मैं आपको बोलता हूँ Wednesday, आपको वो easy रहेगा. Wednesday, वेनसडे एक डे है किसमें, एन एलिमेंट ऑफ ए वीक. तो मैं क्या करेंगे उसके लिए एक सिंपल यूज करते हैं, ये आपको फेमिलियर करना है. दिस इज द सिंपल, अपना लैंग्वेज नहीं है, लैटिन है, इसलिए ई दिखते हैं लेकिन ई नहीं है. किसमें है, इन ए वीक, एलिमेंट इन ए वीक. वीक डेज में एक एलिमेंट है वेनसडे. अगर आप वीक डेज का सेट बनाया उसमें वेनसडे आएगा. You got the point? So this way we
name the sets, and this particular symbol here जो E जैसा दिखता है, it is what is used for denote element. E जैसा ही element ही meaning है. Element means member of. Okay, that is first thing you should understand. Another example over here is like this. And in a curly bracket it is given that, in a curly bracket it is given that 1 2 3. तो n बोले तो हमको याद आना है नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर्स की जगह पे डाला है. 1 2 3 4 infinite numbers are there. So we can say that n is a set of natural numbers. W is a set of whole numbers. Correct? उसमें 0 डाल दिया. I is a set of integers. तो I is a set of integers मैंने लिखा है इधर. नेक्स्ट टाइम आप इतना ही लिखेंगे. I is equal to लिखेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट, वो ब्रैकेट ऐसा है, देखो ऐसा वाला ब्रैकेट है. ये कर्ली ब्रैकेट में आप लिख के रखेंगे what are the elements in that. थोड़ा सीखना पड़ेगा लिखने को भी. Okay, Q is a set of rational numbers. R is a set of real numbers. So like that we in mathematics say about sets. Another thing, for writing I showed you a curly bracket, but there are two methods of writing. One method is called listing method, in which we will write the elements in curly bracket. जैसे मैंने अभी बताया, curly bracket use करके आपको वो set के elements बता सकते हैं. Just like a set of odd numbers between 1 and 10. 1 and 10 के बीच के odd numbers. तो क्या है वो? These are the numbers between 1 and 10. तो दो बार क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए कि आप 3579 लिखो या 7359 लिखो, दोनों सेम है. सेट लिखते वक्त कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन से ऑर्डर पे लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं. एलिमेंट लिखा है क्या पूरा, नंबर्स पूरा है क्या, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बोथ आर सेम, इसलिए दो बार लिख के दिखा है. If an element comes more than once, it is customary to write that. Okay, now element only once. For example, अगर कुछ example दिया है, if an element comes more than once, then it is customary to write that only once. एक ही बार एक element लिखेंगे. For example, आपके क्लास में फुटबॉल खेलने वाले के नाम लिखा तो एक का नाम आ गया राजू करके. फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों का नाम आ गया, उसमें भी राजू है. तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले के नाम लिखने के, दोनों को साथ में लिखने के टाइम राजू का नाम दो बार नहीं लिखेंगे. वैसे कि इधर एक वर्ड दिया है रिमेंबर. ये जो रिमेंबर वर्ड के अंदर कौन से लेटर्स है? आर है, फिर एम है, ई है, दे आर रिपीटेड. ये जो आर एम वी वर्ड्स आर रिपीटेड मोर देन वंस. देखो आर इधर आ गया, आर इधर आ गया, ई इधर आ गया, ई इधर आ गया, एम इधर आ गया, एम इधर आ गया. तो दो बार आया. If we are writing about the letters in the word remember, you will only write these alphabets only once. एक ही बार लिखेंगे. This is very customary and very important in writing about sets. What is important? Only once you will write. That is important thing you should remember. We'll go ahead. There is another method of representing the set which we name as rule method or set builder form. वो क्या होता है? In this method, we write the elements in such a way that with the help of certain vertical line or column to represent it. In the previous case, what we did, we had written in such a way. Here we are having
We do not write the list of elements. जो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसा नहीं लिखेंगे. 1 2 3 करके लिखे नहीं, उसका एक डेफिनेशन बनाएंगे. For example, here it is written in an example, a is equal to, again curly brackets से start किया, x and a vertical line again x. इतना सब में कॉमन है. is an element, अभी x है, ये ग्रुप में जो है उसको हम x नाम डाला. वो x क्या है फिर डिफाइन किया, it is natural number. n डाला तो x is an element of natural number. फिर क्या लिखा, that x is greater than 1 and less than 10. greater than 1 and less than 10. इतना आपको इसके अंदर से रीड करना है. x is such that x is a natural number between 1 and 10. ये जो नीचे लिखा है, ये जो नीचे लिखा है, set A is the set of all x such that x is a natural number between 1 and 10, वही इधर ऊपर लिखा है, लेकिन लिखा है रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में. ये आपको समझना है, सीखना है कैसा लिखना है. So this is another method of writing set. Here more example. A is equal to x such that x is a letter of the word division. जो भी सेट है उसमें ऐसा वर्ड्स है जो डिवीजन वर्ड में आए हुए लेटर्स है. तो लिस्टिंग मेथड में उसका आंसर क्या है, DIVSON. वापस आई नहीं लिखेंगे, ओनली वंस वी विल राइट DIVSON से डिवीजन वर्ड बना है. तो हम लिस्टिंग मेथड में ऐसा लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे. Another example, y such that y is a number such that y square is equal to 9. y वो नंबर है जिसका स्क्वायर 9 है. तो हमारा सेट में कौन सा रहेगा, -3 and 3. ये हमारा लिस्टिंग मेथड है. -3 का स्क्वायर भी 9 है, 3 का स्क्वायर भी 9 है. Another example, z such that c is a set of elements where z is such that z is a multiple of 5 and is less than 30. 30 के नीचे का 5 का मल्टीपल से हमको क्या क्या आएगा, 5 10 15 20 25. सो दिस मेथड में ऐसा लिखते हैं जो इजी है. रूल मेथड में उसका डेफिनेशन या उसका स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. Here is an example from your textbook where you are asked to fill in the blanks. एक दो मैं आपको करके देता हूँ. फर्स्ट वन आपके लिए किया है, ए लिस्टिंग मेथड में लिखा है 2 4 6 8 10 12 14. पढ़ने से मालूम पड़ा these all are even numbers. So x is an even natural number. लेकिन 14 में रुक गए तो हमको लिखना पड़ेगा less than 15. 15 के नीचे का नेचुरल नंबर्स का सेट है. दैट इज रूल मेथड में. रूल मेथड में हमको इधर दिया है x is such that x is a perfect square number between 1 to 16, sorry 1 to 20. 16 किधर से आया मेरा मन में, आंसर आ गया. परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 16. These are vowels, and here it is y is such that y is a color in the rainbow, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये indigo, ये रेनबो का कलर है. और नेक्स्ट वन is an integer which is more than -3 and less than 3. तो कैंसर क्या आएगा, more than -3 मतलब -2, -1, -0, 1, 2. These are the numbers. So इसको हम कर्ली ब्रैकेट में डाल लेंगे और इसका नाम लेंगे p is equal to. This way you have to complete the table given in the textbook, which will help you to make an understanding about presenting sets in roster method and rule method, otherwise set builder form.
दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। जैसे मैं हमेशा बोलता है, प्रैक्टिस आपको करना है, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। नहीं आता है, एग्जाम्पल देखना है, वीडियो वापस देखना है, दोस्तों को पूछना है, फोन पे पूछना पड़ेगा, कैसे भी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर, और रिलेटेड जो नॉलेज आपको अभी दिया उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा पूछा है, क्या करना है, फॉलोइंग से लिस्टिंग मेथड में बनाना है। तो उसको हम लिस्टिंग मेथड में नाम डालेंगे, हम वी आर मेकिंग ए सेट ए विच इज इक्वल टू द वर्ड इन कॉम्प्लीमेंट, लेटर्स इन कॉम्प्लीमेंट, सी ओ एम, कॉमा डालना है, पी एल, फिर ई, फिर वापस एम नहीं लिखेंगे, एम वापस आ गया, ई वापस आ गया, एन लिखेंगे, टी लिखेंगे, तो we will close it. Understood? This way we will solve all the questions given. All the questions given in the exercise. Now, here is another categorization of set. A is equal to 2. A is a set of even prime numbers. Even prime number एक ही है दुनिया में, वो 2 है, बाकी सब odd prime number है। तो if the set is a set of even prime numbers, उसका आंसर रहेगा 2 and 2 only, 2 ही आएगा, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, इसलिए उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट, इफ ओनली वन इज देयर, वन, सिंगलटन का मतलब only one element is there, we call it as singleton. Here is x such that x is a natural number, मतलब 1 से शुरू हो जाएगा, between 2 and 3, 2 and 3 के बीच के नेचुरल नंबर पूछा है। 2 and 3 के बीच में दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा ऐसा एक सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं तो ऐसा लिखना पड़ेगा एक जीरो, कुछ मेंबर नहीं है। Such sets are named as empty sets or null sets. कुछ में मेंबर ही नहीं है, खाली है, empty है, ऐसा भी सेट होता है। P is such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4. 1 से लेके 22 के बीच में होना मांगते हैं और डिविजिबल बाई 4 होना मांगते हैं, ऐसा एक सेट बनाना है। तो क्या हो गया, 4, 8, 12, 16, 20, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। 4, 8, 12, 16, 20, ये these are the numbers divisible by 4 and between 1 to 22. तो इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसमें ये नंबर्स फिक्स है। सच सेट्स आर कॉल्ड फिनिट सेट। फिनिट सेट बहुत कॉमन है, डेज इन ए वीक वाज ए फिनिट सेट, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम वाज ए फिनिट सेट, लिमिटेड है। ये एम्प्टी है, ये सिंगल है, ये फिनिट है, नंबर फिक्स हो गया। ये कैसे मालूम पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 2 3, फिर डॉट 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 डाला है, मतलब ये आगे बढ़ने वाला है, 1 2 3 4 5 6 करके जाएगा। इसका मतलब ये फिनिट नहीं है, इनफिनिट है, अनलिमिटेड। दिस इज इनफिनिट सेट। तो आपको समझ में आएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन में ये बताना चाहते हैं, देयर आर सिंगल सेट और ओनली सिंगल member or element inside, empty set, no element inside, finite set, fixed elements inside, infinite set, unlimited members, unlimited elements inside. We'll go ahead now. Letter in the word listen, that is a set of it, L-I-S-T-E-N. Letter in the word silent, silent की words के अभी दो set बनाए, a set of elements in what we say the word listen, letter in the word silent. देखने में मालूम पड़ा इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें आई है, इधर भी आई है, इधर एस है, इधर भी एस है, इधर ई है, इधर ई है, इधर एन है, इधर एन है, इधर टी है, इधर भी टी है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम है, बट क्वेश्चन डिफरेंट है या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, but all the elements are identical in set A and B. We call them as equal sets. What is it? Equal sets. Equal sets are, they are equal sets. Equal क्यों?
दोनों सेट के अंदर की एलिमेंट्स सेम है और हम उसको ऐसा लिखते हैं, A is equal to B. Set A is equal to B when their elements are, every element in set A is there in set B. Another way of representing set is using Venn diagrams. This is something beautiful to see also, something interesting, developed by John Venn, the mathematician who gave mathematical form for logic and probability. His famous book is Logic of Chance. उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स में डायग्रामेटिकली कुछ रिप्रेजेंट करने का बात किया, जिसके लिए उसको सिस्टम को वेन डायग्राम्स नाम दिया है। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अगर आपको ये लिखने की जगह पे डायग्रामेटिकली करना है तो क्या करेंगे, ऐसा बना के रखेंगे, सेट A 1 2 3 4 5, एक डायग्राम बनाया, उसको नाम डाला वेन डायग्राम। उससे थोड़ा और कुछ आइडिया निकाला, सबसेट कैसे डायग्रामेटिकली, या सबसेट का कंसेप्ट उन्होंने लाया। ये जो सिंपल यूज किया है उसको सबसेट का सिंपल है। सबसेट का सिंबल ऐसा है, कैसा है, एक ऐसा डालने का, नीचे एक स्ट्रेट लाइन। A is 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स अ सेट। B is 2 4 6 8। इसमें क्या समझ में आता है, A में जो 2 है वो B में है, 4 B में है, 6 B में है, 8 B में है। तो A में जो एलिमेंट्स है उसमें कुछ कुछ B में है, इसका मतलब B is a subset of A। B में B is a subset of A, so we can represent it by writing B is subset of A। आपको पढ़ना है B is subset of A, ऐसा आपको पढ़ना है। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिकली पहले हम A का रिप्रेजेंटेशन, B का रिप्रेजेंटेशन ऐसा करना पड़ेगा। A का सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गया, B में 2 4 6 8 आ गया। This way we can represent it. Another, this is something very important which is given in your textbook. Every set is a subset of itself. हमको बोल सकते हैं A का सबसेट A खुद हो सकता है। Sometime we say that empty set is subset of every set। empty में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। When A is equal to B, A is subset of B, या बोल सकते हैं B is subset of A। अगर A और B में इक्वल एलिमेंट्स है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसका मतलब A is equal to B। So these are something you should remember. If A is equal to 1 3 4 7 8, उसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, 1 and 3 लिखा वो भी A का सबसेट है, 4 7 8 लिखा वो भी एक का सबसेट है, 1 4 8 लिखा वो भी एक का सबसेट है, 1 4 7 8 लिखा इक्वल है बट एक का सबसेट है, 1 4 इक्वल नहीं, 3 नहीं है। सो लाइक दैट वी कैन मेक सबसेट फॉर ऑफ ए सेट। ए एक सेट का, ए जो सेट है उसका सबसेट है, ये सब P T V S, all these are subsets of A। So we can write many subset for a given set। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल नाम से मालूम है पूरा दुनिया को एक साथ रखा होगा, तो जिसका सिंबल है U। यूनिवर्सल सेट बोले आपके स्कूल के पूरे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, यूनिवर्सल सेट है। टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स वो इसका सबसेट है। दोस हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले का ग्रुप बोलेगा या सेट बोले तो यूनिवर्सल हो गया, सब हो गया उसमें। बट दोस हु आर प्लेइंग क्रिकेट, टीम में मेंबर है, उसको टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स उसका सबसेट है। और यूनिवर्सल सेट लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करते यू में इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के इधर यू लिखा, इसका मतलब आप यूनिवर्सल सेट प्रोड्यूस किया है। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है। इधर देखो 1 3 9 11 13 18 19 करके, और उसका एक सबसेट बनाया 3 9 11 13। तो उसमें से 3 गया, 3 है उसमें, 9 है, 11 है, 13 है। तो जो बाकी बचा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। बाकी कौन सा है, बाकी ये सब है, कौन सा सब है, 1 है, आगे जाके 18 है,
90, वही तो इधर लिखा है। 118 and 19 are called complement set. complement set कैसा लिखते हैं? अभी B is complement set of universe. B लिखने का ऊपर इधर एक डैश डालने का, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट U है, ओके, उसका एक सबसेट है B। वो B निकालने के बाद बाकी जो बचा है उसको हम B कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं और ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा? B और B कॉम्प्लीमेंट दोनों जोड़ेगा तो यूनिवर्सल सेट हो गया। थोड़ा टाइम लेके समझ लो, सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ चीज नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। यूनिवर्सल सेट मीन्स ऑल, B is its subset, B dash is its complement। B dash वो है जो B में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। समथिंग डिफरेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उल्टा यू डालना पड़ता है। उसमें क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स देयर विल बी द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर टेकन, common elements of two sets, two or more sets. It is represented in this format, A intersection B बोलते हैं। For example, A intersection B is element of A and elements of B. Common elements को हम लिखेंगे। Disjoint set, इसमें हम different elements को लिखेंगे, जो जिसमें है वो उसमें नहीं है, उसमें उस वाला इसमें नहीं है। जो इसमें है 1 3 5 9 वो एक भी B में नहीं है। 1 3 5 9 सेट ए में है। 2 4 8 एक भी कॉमन नहीं है। ऊपर वाले में क्या लिखेंगे? कॉमन वाला, इसमें कॉमन है ही नहीं। Okay, so we call such sets as disjoint set. Union of two sets, कैसे हम दो सेट का यूनियन कैसे बनाएंगे? We have to unite, writing U. When union of set comes, the members will be such that either in A or B. Look at union of A and B resulted in this. This is the union. 0 is common in both. Union हो गया। Okay, for example, -1 -3 -5 0, B में क्या है? 0 3 5, तो कॉमन क्या है? कॉमन इज 0, राइट। तो ये एक बार लिखेंगे। तो A, इधर कुछ रॉन्ग हुआ है, ये यूनियन B यू लिखेंगे। उसमें क्या क्या लिखेंगे हम? -3 -5 -1 0 एक बार, देन you are having 1 3 5, 1 इधर डालना, 1 -1 -1 इधर आया, 3 and 5. So where we will be writing all elements of set A and B together. 0 सेट A में है, सेट B में, इसलिए 1 लिखेंगे। B में 3 5 है और A में -1 -3 -5 है। All together we will write. Okay.